can understand immediately after an industrial visit, and that too followed by a nice sattvic but full of very kind of a lunch, it is very difficult to tolerate something, but ये पाप कर्म मुझे करना पड़ेगा. ठीक है, उसकी जो भी सजा है भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ. Apart from job, holistic perspective for control systems and sensors technology. First of all, I must be thankful to the team of coordinators. They have actually taken a very heavy pain to bring us all together. Okay? I think all are belonging to the academic fraternity, isn't it? Yes. So we can understand how much painful this process is. Okay? So from the bottom of our heart, no need to express the claps, but let our left and right brain clap for them. Sir, दरकार वधी क्या आरोप करूँ? Okay. One correction I will do, particularly to the introduction that has been given to us. This is not at all technical, non-technical session. My PhD topic itself belongs to the control domain. Sir knows very well, isn't it? So generally what is considered, because it has been mandated to incorporate something which is non-technical, let us fix anyone who is of no use for technicality and fit over there. That is not at all the criteria. Let us be very clear first. Okay? In we can say that spectrum, electromagnetic spectrum, we know that infrared as well as ultraviolet, both are not visible. So I am putting forward a word of caution to create a kind of, we can say, reverence for the domain, for the topic, that it is of the ultraviolet domain. Okay? So take these inputs, sir. I hope you will agree with me. So take these inputs as something which is of value to you. Okay? So rather than I will say delivering a lecture, let us try to see it as a kind of a conversation which matters the most to my life. That is what is the holistic approach. So I will break my presentation in two parts. During the first part, during the first half of the session, we will be talking about something which is related to the control systems and sensor technology only. And then we will take few of them, not all, but few of them as a case study in order to appreciate. Because it is all about the attitude transformation. Motive behind this interaction is none other than the attitude transformation. Okay? Are we all with me up to this point of time? So, we all are involved in three directions related to this. What are these three directions? One is teaching, another is teacher has to be the lifelong learner. So learning and teaching learning process is something which is within the box.
So in order to facilitate the out of box thinking, we are also involved with the research. Okay, is it fine to everyone? Are we all involved with this? If your we can say portfolio doesn't suit, please clarify it right now only. Isn't it? Because you are in this hall not to fulfill the criteria. Let us be very clear. If you feel it is of no use as a, we can say, in charge of this particular session, coordinator will not come in between. You can go out and have a cup of tea in the canteen. I have no objection. Of course, I do not give such permission to my students because I know whole class will be empty. Here I know that. Here I know that it will not be doing anything. I just try to create the marketing strategy so that your attention can be fetched from the deeper level. That is the only motive. Okay? So we are all involved with teaching, learning and research. You may say, okay, I am not teaching this subject, for example. My research topic doesn't belong to this domain, for example. And I have been teaching the same content since last 15 years, so I am not involved in the learning. So this formula is not applicable to me, so I may go out for the cup of tea. So I will say, please wait. Let me have some saying in the defense of you to be in the session. Yes? So what is that defense? Any idea? Because it has to do with the holistic education. Connect the dots. Beautiful part of life is connecting the dots. Tasya yojaka durlabha. Have you heard this saying? There are no herbs which are of no use. There is no individual who is of no use. But tasya yojaka durlabha. And teacher, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता. निर्मल और प्रणय उसकी गोद में पलते हैं. रवि की गोद में सब पल रहे हैं, कितने सारे बच्चे. आपका नाम अबे कितना निर्माण किया, कितना पढ़ाई किया हो गया. Okay. So teaching, learning and research. Okay, let me throw one more googly. Let me ask one more question. ये थोड़ा कलरफुल करने के लिए आपके लिए याद करके उठा के मैं सूरत से ले आया था, क्योंकि मुझे मालूम था रविश मुझे से ब्लू पेन देगा. I am very close friend to him. That's why I am taking advantage of him, taking his name again and again, so that he will call me in the next FTP also. कभी वो बोल रहा था कल परसों, क्योंकि हर बार एक नॉन टेक्निकल तो रखना ही है, अगली बार आपने किसी और को लेकर आना. मैंने बोला मैं क्या गलत हूँ? और आप लोग भी बुलाइएगा मुझे. मैंने मेरा मार्केटिंग कर दिया. ओके, लोग भी आइएगा. Okay, so what I was telling, when we talk about holistic education, let us be clear about the education first. What is purpose of education? You are all educationists, isn't it? What is purpose of education? देखो ये इंटरेक्टिव रहेगा, सब बात करेंगे, या फिर मैं क्लास में करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स को खड़ा करके पूछता हूँ आप बताइए, तो ऐसा मैं यहाँ करूँ नहीं अच्छा लगेगा. It will be below dignified, isn't it? है कि नहीं? खुद पार्टिसिपेट करिए प्लीज. मोस्ट वेलकम सर. I hope you all are knowing sir. कितने लोग नहीं जानते हैं? कोई नहीं जानता है. क्योंकि वहाँ
यहाँ पर जनरली ऐसा होता है बड़ी बड़ी संस्थान में IIT में कौन डायरेक्टर है कौन नहीं है कोई पूछता नहीं है, पर यहाँ तो ये सर पीयूष जैन सर इज principal of this institute or I have been affiliated with sir since when I joined SVNIT. And particularly today I had an opportunity to interact much more with sir and I could find we can say dynamic positive attitude leadership in his personality. So what I will tell, that is what is the holistic approach of learning. Our session is going on, don't worry. That is what is holistic approach. We are learning by observing. And when sir entered, I was asking one question and I was telling that it will look undignified if I tell anyone, okay, you please tell, okay? So voluntarily participate, please. You may stand up and share if you want, if you have something to say. Yes? So what is purpose of education from your perspective? From your viewpoint, what you consider as the purpose of education? Why is this subtle FDP arranged? What actually is something which is expected out of that? If purpose is not clear, how can we get an outcome? Am I making some sense? Learn something which we don't know or which we wish to learn. Okay, let me write. Because when you are telling, it is having your background with this, isn't it? So immediately by listening to it, I cannot have digital answer 0 or 1. So one of our friend, what is your name, please? Alpesh, Alpesh. From where are you, dear? Government Polytechnic Dahod. Government Polytechnic Dahod. So he is telling to learn something great. Learn something which we didn't know, which was unknown at this point of time. At X point of time, I know some quantum amount of information or knowledge or wisdom. All these three things are different. Information is one thing, knowledge is something else. Knowledge has to deal with the concept and wisdom has to deal with the inner journey. If I tell in the language of Adi Shankaracharya's journey for we can say self-realization, there are 4 steps. Shravan, Manan, Nididhyasan, Sakshatkar. Shravan of information can be done, Manan of knowledge can be done, and Nididhyasan of the wisdom can be done. Same thing at a different levels of we can say maturity, I will tell like that. Great. So our friend Alpesh from Government Polytechnic Dahod is telling that learning something which was unknown is something which is the purpose of education. Very good. That is precisely what we are doing. Isn't it? Any other answer? Once again, this answer is in a gray shade between 0 to 1, isn't it? Education means is to grow out. Means, let me write. Your name please? Myself Brijesh Verma from SNPIT. Okay, Brijesh. Brijesh is telling that Is to grow out. Qualities of the person that can be drawn out from his life. Acha, okay, to draw That out. is the purpose of the education as per our ancient education system. Great. So, by taking reference of Indian knowledge system, Bharatiya Gyan Parampara, Brijesh Bhai is telling that it is to draw out. Draw out something which is within. Yeah. It is not something to be injected from outside. It is there within. It's just to allow it to be unfolded. That is what our friend is telling. Any other answer? Last one answer. To differentiate between right and wrong. Right and wrong. Sir, please, can I know your... My name Pratap from SNPA. Okay. So, Pratap sir is... what is your answer, sir? To differentiate between what is right and wrong. Okay, so you are telling about the Vivek. Right, wrong. Evaluate the things at the different levels of, we can say, maturity, something which is the differentiate between right and wrong. एक और आखिरी आंसर लेना पड़ेगा, गर्ल्स में से कोई नहीं आया? बताइए, आप में से कोई एक बताइए। इतना तो मैं बोल सकता हूँ ना, सर, परमिशन है? अभी तो स्टूडेंट है सब, है कि नहीं? अभी मैंने कहा ना, लर्निंग भी है टीचर का, तो अभी अब टीचर का कैप उतारिए, स्टूडेंट का कैप पहनिए, तभी मजा आएगा। चलो,
पीयूष सर बरोबर है? बताइए कौन बताएगा? आपका नाम? ज्योति जी बता रहे हैं टू गेन द नॉलेज. ग्रेट, excellent. So this is what is we can say broader kind of perspective that we are carrying about education, purpose of education. Excellent. As I was telling, all answers are correct. What I am trying to put forward now is trying to integrate the things. Holistic education, spontaneous definition that comes out through me by Devi Saraswati is to connect the dots. कहीं पढ़ा नहीं है आगे, कभी सोचा नहीं, spontaneously आ रहा है. Connecting the dots is something which is the holistic education, है क्या नहीं? तो आप सबने जो आंसर दिया एजुकेशन के पर्पस के बारे में, उसका कनेक्टिंग द डॉट क्या हो सकता है? What can be the connecting dots? So I am sharing something which is once again the established branch of knowledge. Have you heard about one word known as educational psychology? ये शब्द सुना है सबने? Educational technology is one thing and technology of education is something else. Educational psychology is the word which I am using for the technology of education. And it is the branch affiliated with the teachers, school teachers. The place where school teachers are being trained. DPED, then BEd, MEd, even PhD in that university, BNSU is having one department of education. So there all the courses relevant to this are offered. So I am sharing that information which is, we can say, a generations altogether. Whatever is the cultivated wisdom, I am just passing it on as a postman, so that the connecting the dots can take place. I will not be connecting the dots because otherwise main topic will be left. I simply pass on. We have done some brainstorming and now I am putting forward the conclusion, which I am sure is acting as a connecting dot. So purpose of education as per this is about the, we can say, perfection of consciousness. You will tell me this word is not available in this, but they are indicating that only. It will come once I will complete these things. Now what are the domain of us which are possible to be trained? क्या क्या डोमेन है अपने अंदर? उसके पहले तो ये बात है कि what are the domains? ट्रेन हो सकता है, नहीं हो सकता है, बाद में देखेंगे. What are the traits of personality to which we are dealing? Educate का अर्थ यही हुआ ना कि जैसे बहुत सारी आंसर से मिलता है कि भाई कुल मिलाकर के हम अपने आप को किसको हम एजुकेटेड कहते हैं? अपने भीतर के होनेपन को परिपूर्णता की ओर ले जाना, जिसके लिए मैंने अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखा कि परफेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस शब्द से आपको आपत्ति है तो आप अपना शब्द ढूंढ लीजिए, कोई आपत्ति नहीं. जो कहना चाहते हैं वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट आर द ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी? ये मेरा सिंपल सवाल है, क्या लगता है बताइए? व्हाट आर द बेसिक ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी? बोलिए. व्हाट आर द बेसिक ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी? कौन कौन से डोमेन है? भूख लगती है तो खाने का मन होता है ना. वो महाभारत का एक बहुत अच्छा श्लोक है कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य में और पशु में कॉमन है. तो मनुष्य में पशु से अलग क्या है? धर्म. तो ऐसा कंक्लूजन बताया कि धर्म विहीन मनुष्य वो पशु के समान. तो क्या समझ में आया? उसको हम कौन सा डोमेन बोलेंगे? नोन एज द इंस्टिंक्टिव डोमेन. जो चीजें इंस्टिंक्ट से चलती है, ठीक है, क्या उसको ट्रेन करना जरूरी है या ट्रेन किया जा सकता है? भूख लगेगी तो खाना ढूंढ ही लेगा. पहले के जमाने में लोग पशु को मार के खा जाते थे, बाद में फल खाने लगे. अब कुकिंग की सिस्टम निकली है. फिर से किसी ने बताया कि कच्चा खाओ, तो कच्चे पर गए.
तो चलता रहेगा, वो सब प्रयोग होता रहेगा, बट कुल मिलाकर के नर्चरिंग द न्यूट्रिशनल इनपुट इज समथिंग व्हिच इज इंस्टिंक्टिव काइंड ऑफ थिंग, उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि नहीं? तो ये एक डोमेन हो गया। तो ये ट्रेट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी है, बट उसको ट्रेनिंग की ज्यादा कोई रोल नहीं है। क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए वो भी ऊपर के डोमेन से कनेक्टेड है। व्हाट इज द अदर वन? कुछ एनी आइडिया? अदर देन इंस्टिंक्टिव डोमेन कौन कौन से डोमेन है? फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, isn't it? Maybe about 30 to 33 years back. सर नमस्ते। अरे प्रभु अभी है ना बारडोली एक इंस्टीट्यूट में एक्सपर्ट टॉक चल रहा है, अभी आपकी यहाँ के प्रिंसिपल सर से बात हुई, इसीलिए आपका था, इसलिए मैंने फोन उठाया। तो उनसे बात करवाता हूँ आपसे, यहाँ पर भी कुछ सेंटर करना है, आप जैसे वहाँ आत्मीय में कर रहे हो ना सर, तो मैं सेशन खत्म होने के बाद आपको कॉल करूँ सर? आराम से बात हिंदी में बात कर रहा था ना, जय जय सर प्रो चांसलर ऑफ आत्मीय यूनिवर्सिटी। ओके, सो अदर देन इंस्टिंक्टिव डोमेन, I was giving an example about the way in which I have been delivering in front of you. If it would have been a year of 1993, maybe 30 to 33 years back, and the same content would have to be delivered, irrespective of the content. Or another example, I had learned about driving in the 2014. So maybe 10 years before I would have come for expert talk over here. Sir would have invited, and if I would have driven it by my own, the way in which I would have driven the vehicle at that point of time and today, there is a difference between the two, isn't it? So it is something which is the one attribute of personality which can be cultivated, isn't it? So what is that? So in this educational psychology language, we can say that it is known as the psychomotor domain. It is psychomotor domain. Okay. Any other domain? Excellent. So you people know actually, isn't it? Cognitive. So now I will move fast. You know already. Cognitive and affective. Excellent. So what is purpose of education then? Can you please extrapolate the understanding? Purpose of education about perfection of we can say consciousness, and perfection of consciousness takes place by, see, it is all we can say graded version. This is all for example psychomotor domain. Highest grader, what is the highest grader of psychomotor domain? Any idea to anyone? It is naturalness. It is naturalness. एक सहजता आ जाती है। सर से बात हुआ कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या होता है, बोला कि अभी उससे मैं एक्स्टम्ड हो गया, मतलब एक सहजता आ गया, है कि नहीं? कोई भी काम नया करते हैं तब उसमें डिफिकल्टी लगती है, बाद में उसमें एक नेचुरलनेस आ जाती है, तो वो क्लाइमैक्स है। तो पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या हुआ फ्रॉम साइकोमोटर पॉइंट ऑफ व्यू? While interacting with everyone and dealing with everything, let us be natural. ये है कि नहीं पर्पस ऑफ एजुकेशन? अभी ये हाइट से अगर हम चीजों को देखेंगे तब ये एजुकेशनल सिस्टम को सही मायने में मूल्यांकित कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट अस कम टू अफेक्टिव डोमेन। आई विल मूव समवट फास्ट बिकॉज़ मेन टॉपिक रह जाएगा। ये पूरा एक वीक का एचटीटीपी का मसाला है सर। ओके, अफेक्टिव डोमेन में हाईएस्ट क्या है? एनी गेसेस? क्या लगता है? हमारा दिल बड़ा हो गया तो क्या करेगा वो? Spread the knowledge. Excellent. Spreading the knowledge तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर सेंस ऑफ वननेस है। मैं मेरे बेटे के लिए जितना कंसर्न रखता हूँ, मेरे छोटे भैया के लिए जितना कंसर्न रखता हूँ, इतने ही कंसर्न के साथ आप लोगों के साथ ये कोऑर्डिनेटर लोग डील करेंगे तो आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। वो इफेक्टिव डोमेन का एट्रीब्यूट है।
तो इट इज ए सेंस ऑफ वननेस विच इज द क्लाइमेक्स, एक एकत्व का अनुभव. Yes, and what about cognitive domain highest? One of the thing that sir had told already बताया ना विवेक, राइट और रॉन्ग के बारे में आपने बताया ना सर, वही है कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट, पावर टू इवैल्यूएट. और सीओपीओ मैपिंग में भी करते हैं ना, ऊपर सबसे हाईएस्ट लेवल की डिफिकल्टी क्वेश्चन वो इवैल्यूएट वाले होते हैं, है कि नहीं? क्लियर हो गया? ये हो गया पर्पस ऑफ एजुकेशन. मैंने अभी तो सिर्फ एजुकेशन का बात किया, उसमें होलिस्टिक, व्हाट इज होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इन दैट? कोई भी एजुकेशन यही है, जाने या अनजाने में हम यही काम करते हैं. वी आर डूइंग इट नोइंगली और अननोइंगली. ओके, होलिस्टिक एजुकेशन इज डूइंग द थिंग्स विद दिस अवेयरनेस. फिर से स्पॉन्टेनियसली मैं बताता हूँ, फ्रेंकली बताऊँ, ये स्लाइड्स भी मैंने कुछ मसाला डाला था उन पर, उन्होंने क्या क्या बनाया मैंने भी नहीं देखा है, क्योंकि वही साइकोमोटर का क्लाइमेक्स थोड़ा नेचुरल है, सहजता से जो आता है, जो जरूरी है, जो जैसा होता है वही सबके लिए उपयुक्त है कि नहीं? शुरू शुरू में क्या करना होता है, शुरू में क्या करना होता है कि हमको कंटेंट कवरेज की बात होती है, और बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं. विजन ड्राइव्स मिशन एंड मिशन ड्राइव्स एक्शन. ये पूरा सही में टॉप डाउन अप्रोच है. ओके, एंड वी ऑल आर एज ए टीचर लीडर्स ऑफ द क्लास. वी आर ऑल लीडर्स ऑफ द क्लास एज ए टीचर. I think the success of this limited interaction amongst us is to bring back that awareness within each one of us. हम सबके अंदर वो awareness जग जाए ना, वही मेरा तात्पर्य है संवाद का. उसी लिए मैं फ्रेंकली बताऊं सूरत से यहाँ आया, है कि नहीं? तो क्या बात हो गई, कॉग्निटिव डोमेन का इवैल्यूएट, और ये सब चीज को जान के समझ के विजन से मिशन एंड मिशन से एक्शन ड्रिवन हो, तब जाकर के उसको होलिस्टिक एजुकेशन कहेंगे. यहां तक ठीक जम रही बात? एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ब्रेनस्टॉर्म, योर फोरम इज ओपन फॉर द सेम. बिफोर आई स्विच ओवर टू द नेक्स्ट लीडर, अब तक हमने क्या बात करा, टाइटल का पहला कंपोनेंट होलिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है, उस पर ही हमने बात किया है पूरे टाइटल में से. अभी मैं बात करने चाहूंगा वो ये होगा, कंट्रोल सिस्टम्स एंड सेंसर्स टेक्नोलॉजी, और पूरा टेक्निकल कंटेंट रहेगा. ठीक है, अब तक कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि अभी हमको नए नजरिए से वही चीज देखनी है. एनीवन, एनीथिंग, एनी ऑब्जर्वेशन? आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन क्लोज लूप काइंड ऑफ फीडबैक. कंट्रोल का क्लास चल रहा है तो कंट्रोलिंग तो होना चाहिए. ओपन लूप कंट्रोल कैसे होगा, क्लोज लूप करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? कौन बताएगा? सर आप बताओगे प्लीज. My question is, whatever we have discussed up to this point of time, and you are involved in education since how many years, sir? 15 to 20 years. So we have defined holistic education as the education which is inculcating that awareness in the process. We are doing this only, isn't it? Whenever we are having a teaching learning process about any concept, isn't it? If, for example, if I take the subject of control systems engineering, so what will be the first topic? We are taking different blocks represented by some mathematical expressions. Then we are just either converting to Laplace domain if it is a continuous time system. So Laplace domain equation will be there, and we are just trying to, from that Laplace transform के ऊपर से हमको क्या मिलेगा, ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा, HS is output upon input, और बाद में S J ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलेगा. तो ये पूरी प्रक्रिया हम करते हैं. तो उसके इस प्रोसेस में अभी हम सब तो समझ रहे हैं,
But you can assume that 12 science students comes to institute for the first time. How can that be touching to them unless and until that conceptual background is there, isn't it? So teaching learning process is always involved with that conceptual background. So we all are providing that conceptual background. But just like in the mobile, we are having some application software, at the same time at the inner side there is an Android operating system. So to be aware about the operating system level functionality, to be aware about the vision for life as well as the organizational structure, every institute is having a vision and mission statement, isn't it? So life purpose is to be attuned to the vision of an institute, vision of the institute is attuned to be the mission of the institute, and each and every teacher, COP or CEO, you must have done all this exercise in accreditation process, if at all you have applied for the same, isn't it? So what is actually all outcome based learning? It is said to be the outcome based learning. So personally, I somewhat bold statement, but let me tell you, I do not agree with this much paperwork. But everyone have to be, we can say, internally triggered to their own purpose of life. Then everything will take place automatically. Otherwise, what happens in the accreditation process, sir, people are working behind that paperwork and everything. So more or less, kind of a Hippocratic scenario takes place. I don't know your experience, but my perspective is this. Forcefully paperwork must be there. Isn't it? So what I am intending to convey, if my motive of my life is something which is, I will share one thing because ना टाइम है मेरे पास, रविश बताओ अकॉर्डिंगली मैं ओके सो बीच में कोई ब्रेक तो नहीं देना है ब्रेक ले तो चाय अंदर ओके ग्रेट थैंक यू so what I was telling, in this teaching learning process, if teacher is to be sensitized for the holistic perspective, am I making some sense? At 4 different ladders I am working at this same point. This thing is applicable to 4 category of people from 4 different angles. I am purposefully switching over topic from one extreme to the other extreme. Why? Because I know your bandwidth is very wide, because you are our teachers, isn't it? So in the process of allowing yourself to be aligned with the interaction, your cognitive functionality is increasing, and that brings back your, we can say, awareness to the fullest possible extent. Why? Because we are sitting after lunch, isn't it? So what I am trying to convey, in order to point था मेरा original point कौन सा था भाई? हाँ, yes, I am addressing the thing, same thing for the 4 different categories of people. For you, it is applicable to the top 2 ladders. The same content, if it is delivered to the students, from the other perspective, they will be taking. And if, for example, if I am addressing the same thing to the supporting staff, from the different level, its interpretation will be fetched. But the content is universal in nature. Please try to understand. So, in order to bring that component in your attention, in order to fetch your attention to that particular very critical and important component, I would like to share something like, we can say, theory of karma. But as soon as I will take theory of karma, you will be assuming that now he will start about Bhagavad Gita. But no, not at all. Because I know same thing again and again to be done leads to the boredom, isn't it? So I don't want you to bore you people. So what we will do? Western perspective of the theory of karma. That is what I am going to talk. Then we will come back to the original point. From where we are discontinuing, I am telling that purpose of education, holistic perspective, and the topic under interest. Case study पर अभी मैं आया ही नहीं. Topic of our interest. All these things are to be looked upon by each and everyone, isn't it?
Why? Answer to that I am trying to give from the perspective of the theory of karma of western origin, क्योंकि आजकल लोगों को वेस्टर्नर चीजें अच्छी लगती है कि नहीं? तो वेस्टर्नर पर्सपेक्टिव में theory of karma is known as, I am writing down now that title, Aristotle. Have you heard this word? सबने सुना है ये? Aristotle four cause model. Whatever is visible right now in this hall is an effect, and that effect is driven by the cause, isn't it? Cause effect cycle, we all know. Even at the highest level there is nothing like a cause effect relationship, but वो बात अभी बाद में रखते हैं, क्योंकि वरना वो फिर थोड़ा ज्यादा ही वो बैंडविड्थ बढ़ जाएगा. तो अभी हम क्या करते हैं कि every effect is driven by the cause. So Aristotle has suggested, you can Google it down, आपको ये मिल जाएगा. तो Aristotle four cause model, what does it tell? In the simple language I will put, ताकि ज्यादा अपने दिमाग को तस्ती न रखे, याद रखते हैं. तस्ती न पड़े इस तरह से मैं चीज रख रहा हूँ कि Aristotle four cause model is telling that every effect is driven by four causes. At वो क्या है कि OSI मॉडल जैसा है, हायरार्किकल मॉडल, isn't it? So what is the lowest hierarchy of the same? So it is said to be equal to what? Answer to the what to anything is first layer of cause which has lead to this effect. What is the second one? What, then how. If carpenter comes and look at the same, तो he will think कैसे ये बनाया होगा, है क्या नहीं? How. तीसरा, अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, उसका कोई आएगा बंदा तो वो उससे भी आगे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करेगा कि क्यों ये बनाया गया, क्या क्या उसके फैसिलिटी एंड फीचर है क्या नहीं? तो थर्ड लेटर इज द व्हाई. और चौथा हाईएस्ट लेवल, जहां पर वास्तव में होलिस्टिक पर्सपेक्टिव चरितार्थ होता है, वो who am I, who are you. Raman Maharshi tells that this can be the simplest and the most we can say effective sadhana. Keep on asking to yourself, who are you? You will say I am so and so, working at this institute since how many years? My institute's decision making process is matured or unmatured, whatever it may be, so that I am not promoted in time, or maybe I have been rewarded properly, what blah blah, I am husband of this or wife of this, and like that, that you have identified all your introductions. I am male, I am female, I am mother, I am father, I am son. But still if you keep on asking, who are you? So you remember your birth rate, before your birth rate, who have been you to be, आप कौन थे उसके पहले? तो who are you डील करते करते जो बचेगा ना, in Veda it is said like this कि भाई नेति नेति का जो सार बाद शेष है ना, वही तुम्हारा स्वरूप, ये भी नहीं हटाते जाओ. Have you seen any time that onion में कैसा होता है? प्याज का छिलका निकालते जाते हैं, अंदर कुछ नहीं बचता है क्या नहीं? तो इसी तरह का ये है, वी आर मेड अप ऑफ 5 seeds, हमारे 5 कोष है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय. इसके पीछे का जो एसेंस है, जिसको हम खाली जगह बोल सकते हैं, स्पेस, उसको दृष्टा कोई है, और वो दृष्टा ही एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है. उसी में ये सब पैदा हुआ दिख रहा है. आदि शंकराचार्य is telling it like this. What Adi Shankaracharya tells? You are, what is the, see, when I talk about the holistic perspective, then don't you agree that this answer to all these 4 are required? Who are you? Who is teaching in the class? Why are you teaching? How are you teaching? In terms of effectiveness, or
we can say motivation, isn't it? And what exactly are you delivering? कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, है कि नहीं? तो ये चारों लेडर का जब कवर होगा तभी जाकर के वो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बन पाएगा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? कहीं पर भी मुझे शंकराचार्य को फिट करके जो भी मैंने सुना है, पढ़ा है, समझा है, वो वॉमिटिंग नहीं करना है, प्लीज। समझिए मोटिव क्या है, ये पर्सपेक्टिव जरूरी है, और हु एम आई उसका पर्सपेक्टिव क्लियर करना ही मेटाफिजिकल रियलिटी है। And what is that metaphysical truth? If I try to drill further about that metaphysical truth, it can answer about not more, not less than 3. Law of 3 is prevailing over there. What are the 3 fundamental questions? Who am I? जैसे मैंने बताया. What this world around me is. And if there is any creator, who is that? कोई भी धर्म ले लो, कोई भी फिलोसॉफी दर्शन ले लो, कोई भी परंपरा ले लो, स्कूल ऑफ थॉट ले लो, इसी को एड्रेस कर रहे हैं। फिलोसॉफिकल we can say quest with the humanity is revolving around these 3 fundamental questions only. जीव जगत और ईश्वर के स्वरूप के बारे में ही शोध इंसान की मूलभूत प्यास है। Do we all agree? You have full right to disagree, and better will be that you will disagree. समझ आ रही है बात? मैं कौन हूं? ये ऐसा है भाई, देखो एक सर्कल है, सर्कल को हमने 120 डिग्री लाइन से सेग्रीगेट कर दिया, तो क्या वो पूरा कवर हो गया कि नहीं हो गया? हैं? पूरा सर्कल कवर हो गया। इसी तरह से मैं कौन हूं, ये एक कंपोनेंट हो गया। पूरा आसपास का जगत, दृश्यमान जगत है, वो दूसरे कंपोनेंट में आ गया, और उस दोनों के ऊपर कोई अगर सत्ता है या नहीं है, जो भी आपकी बिलीफ सिस्टम है, वेदर यू आर एथीस्ट और एथीस्ट डजंट मैटर, बट दैट इज अ थर्ड कंपोनेंट, इसको हम ईश्वर बोलते हैं। तो इसके बाहर कोई चौथी शोध है मानव की? मानव की मूल मांग यही है। आपकी मांग देखो, ये अभी धीरे धीरे हम लोग कन्वर्ज हो रहे हैं, प्लीज टाइट पॉइंट। अब नाउ शब्द मायने नहीं रखते, दो शब्दों के बीच में जो स्पेस है ना, वो स्पेस में आपके अंदर का अनाहत सुनने में आ जाए ना, तो बात पूरा हो गया, पर्पस इज सॉल्व्ड। लेट अस इवन नॉट थिंक अबाउट कंप्लीटिंग द टॉपिक। आर यू विथ मी माय डियर? एंजॉयिंग? ठीक है? See, it is actually appointment with yourself. I need to be having an appointment with myself, and it is possible only when. When is it possible? बताइए, मैं अपने से क्या कब मिल सकता हूँ? जब मैं ये 3 चीजों को अपने आप से अलग कर दूंगा। क्या क्या चीजें हैं? मैं अपने आप को कुछ मान के बैठा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? I am nothing, I want nothing, I need not do anything. अचा, अकिंचन, अकर्तव्य। Am I making some sense? That doesn't mean I am telling to Ravish ke don't work. Otherwise, principal sir will give him memo. What I am trying to convey, that to be with yourself requires to allow yourself to be detached from everyone and everything else. तो बार बार अपने केंद्र में आना है, बाद में देखना है कि ये पूरा मेरा ही फैलाव। Am I making some sense? तो जीव जगत और ईश्वर के बारे में स्पष्टता ही इंसान की मूलभूत मांग है, और उसका उत्तर वो चौथा लेडर है, हु से एरिस्टोटल 4 कॉज मॉडल में से। ठीक है? तो यही कॉज इफेक्ट में परिणित होता है। अभी हमारा कहां पर इसमें फिटमेंट है, वो हमको देखना पड़ेगा। चारों में रहता है, जैसे ये नहीं आता है जो आपने सुना होगा वर्णाश्रम व्यवस्था, उसमें बोलते हैं ना कि भाई 4 तरह के वो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
तो वास्तव में वो वर्ण प्रधान नहीं है, वो कर्म प्रधान व्यवस्था है। हम लोग सब ब्राह्मण कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिफिकेशन। हमारा सीखना सिखाने का काम है, कॉग्निटिव लेवल का काम है मेजर, तो इसलिए वो कौन से में आएंगे, ब्राह्मण कैटेगरी में आएंगे। तो हर एक कैटेगरी के लिए कौन से कैटेगरी के लोग फिट रहेंगे, देखो आप एक्चुअली ये बोर्ड का आंसर आप देखोगे ना, तो कर्म प्रधान वर्ण व्यवस्था में आप देखोगे तो यही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। अब बाद में थोड़ा उसका एनालिसिस करना, अभी मुझे जो बात करनी है वो मुझे रखने देते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में अगर वर्कर है, उसको किसकी जरूरत है जानने की, उसको यही जानना है कि क्या करना है, उसको तो ये इंस्ट्रक्शन देना है। तो यहां पर कौन से लेवल के लोग रहेंगे, वर्कर लेवल के। कैसे करवाना है वो काम, तो उसका सुपरवाइजर होगा, उसका काम रहेगा। तो यहां पर कौन से कैडर के लोग रहेंगे, मैनेजर। फिर ये क्यों करना है वो कौन सोच पाएगा, लीडर। लीडर विल बी हैविंग ए कंसर्न विद द वाई, एंड हु के बारे में कौन सोचेगा, मेंटर, जिसको हम सदगुरु बोल सकते हैं, गुरु बोल सकते हैं। अभी ये आपकी फ्री विल, मैंने कहा ना शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। आपका शिक्षक के रूप में, मेरा शिक्षक के रूप में दायित्व सिर्फ कोई सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करना नहीं है, बट वो तभी हो पाएगा जब हम अंतर बाहर पूरी व्यवस्था का चार्ज अपने हाथ में लेंगे। और तो बहुत सारी जगह पर अंदर और बाहर विद्रोह भी होगा। Do you all agree with that? तो विद्रोह के साथ कैसे डील करना है, वो किसका काम है? Is it a wastage of time? No, not at all. It has something which is having a connection with my own life. मेरा जीवन है भाई, मैं कहाँ लगा रहा हूँ, उसमें कौन सी समस्या आ रही है, उस समस्या के पीछे क्या मैं उसमें अपना समय शक्ति लगा रहा हूँ। It is not a wastage, it is investment of time. That is a holistic perspective. Putting your time and energy for the cause it is expected to be, that is what is holistic perspective. जहां पर जो समय शक्ति लगाना है वहां पर उतना ही लगाना, न ज्यादा न कम, इज समथिंग व्हिच इज द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो अभी हम मूल विषय पर आ जाते हैं। तो ये चार में से जो अपने मेंटर लेवल की जो बात है, लीडर, मैनेजर एंड वर्कर, सबकी जरूरत है समाज में। हम अपना खुद का मिशन आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें हम अपना पूरा जीवन लगाएंगे, है कि नहीं? आई विल रिकमेंड के एज ए टीचर हमको ऊपर के दो, कई लोग यहाँ आए थे एसटीडीपी में, एक्सपर्ट में नाम नहीं दूंगा, बट कुछ लोगों का यही मानना है कि बिजनेस फैक्ट्री वाला ही काम करते हैं, मास्टर कुछ करते नहीं। और शायद सबकॉन्शियसली आप भी ऐसा मानने लगोगे, ज्यादा सुनोगे तो बेचारा बन के घूमना पड़ता है, लगता है क्या है यार, ये क्या जीवन है। तो इसलिए शुरू में कहाँ से किया, वो चाणक्य के डायलॉग से बात शुरू की कि हम अगर ये चीज को अपने आप को सेंसिटाइज करें कि वर्कर और मैनेजर लेवल से ऊपर का काम लीडर का है, एज ए टीचर हम लीडर तो है ही है, और मेंटर की भी पॉसिबिलिटी हमारे अंदर मैक्सिमम। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए अगर ये कंटेंट को डील करने की जब बात होती है तब जाकर के होलिस्टिक पर्सपेक्टिव एस्टैब्लिश होता है। अभी कंट्रोल सिस्टम के कुछ 1 2 3 केस स्टडी लूंगा और उस पर ये कैसे लगाया जा सकता है वो बात करके आज का सेशन को एक क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन रखिए, सर को भी सुनेंगे हम, ठीक है? तो सबसे पहली बात, कंट्रोल सिस्टम्स इज टॉकिंग अबाउट एवरीवन एंड एवरीथिंग, पूरा फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है क्या नहीं? Boiler temperature control, classical simple example, isn't it? We need to maintain the temperature within the boiler, maybe 800 degrees centigrade. Then what we will do? We will apply some heater, temperature will keep on increasing
through some sensor technology will come into picture over there. It will measure the temperature, and accordingly either there is a on-off relay or maybe some other kind of mechanism can be set. That mechanism can be mathematically modeled by P controller, PI controller, PD controller, PID controller. What are the pros and cons? Undershoot, overshoot, critically damped system, all these things we know very well. तो ये जस्ट सैंपल लेने के लिए मैंने फर्स्ट ऐसे ये फ्लैश कर दिया। अब मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम कौन कौन सी कैटेगरी की है। पहली चीज तो ये है कि सिस्टम जिसको कंट्रोल करना है, कंट्रोल किसका करेगा वो? सिस्टम कंट्रोल किसका करेगा? सिग्नल का, नेचुरली सिस्टम विल कंट्रोल सिग्नल ओनली, है क्या नहीं? आई एम स्पीकिंग समथिंग, यू आर लिसनिंग टू समथिंग, इजंट इट ए सिग्नल? उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया तो फिर रवि साहब अपने बढ़िया सा कंट्रोल सिस्टम बना देंगे, है क्या नहीं? सिग्नल ही है। तो नेचर में सिग्नल कितनी कैटेगरी के हैं? दो कैटेगरी के, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल। डिजिटल क्यों घुसेड़ना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे पास फिलोसॉफी खींचने का टाइम नहीं है और आजकल मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रोलिंग हैपेंस इन द डिजिटल डोमेन। एम आई राइट सर? तो क्या करेंगे? एनालॉग डिजिटल, दो में क्या फर्क है? रियल नेचुरल सिग्नल्स कौन से हैं? एनालॉग है या डिजिटल? एनालॉग इन नेचर, एक्सीलेंट, बरोबर है, सिंपल बात है। तो ये एनालॉग को डिजिटाइज क्यों करना है? ये झमेला क्यों आया? उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है? ये सब चीजों को अगर हमने एब्सॉर्ब किया है, उस पर थोड़ा सोचा है और बच्चों से ये सब बातें बताएंगे ना, उनका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। ये होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है कि नहीं? अब ये एनालॉग डिजिटल के ऊपर एक क्लासिफिकेशन कहूं तो रवि सर खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारा और उनका पीएचडी टॉपिक से मिलता जुलता चीज है कि नहीं? क्या है वो? डिटरमिनिस्टिक सिग्नल है या तो स्टोकेस्टिक सिस्टम सिग्नल। दो में क्या फर्क है? अभी रियल वर्ल्ड सिग्नल डिटरमिनिस्टिक है कि स्टोकेस्टिक है? सोच के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर गलत भी होगा, मुझे मालूम है। स्टोकेस्टिक है। हमको स्टोकेस्टिक लगता है, वास्तव में वो डिटरमिनिस्टिक। सोचिएगा उस पर, अभी फिलोसॉफिकल चर्चा नहीं करेंगे। हमको स्टोकेस्टिक लगता है बट वो डिटरमिनिस्टिक है ना कि नहीं सर? गुजराती में वो कहते हैं, मैडम सत्य अरे आप सत्य तो मैं अच्छा कितना टाइम हो गया? ये है सर, ये चाय तो चाय के लिए चाय की जरूरत हो रही है, थोड़ी महसूस हो रही है ना? ओके, तो आप कंटिन्यू रखते हैं, ऐसे मस्ती से धीरे धीरे चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। बाद में वो स्लाइड भी घुमा लेंगे, चिंता मत करो। वो डिटरमिनिस्टिक एंड स्टोकेस्टिक, तो डिटरमिनिस्टिक सिग्नल में मैंने जैसा कहा दो है, एक एनालॉग है, एक डिजिटल है कि नहीं? अभी आपको एक प्रिंसिपल मालूम है, कौन सा प्रिंसिपल है? कि कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम, कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एनालॉग एंड डिजिटल। ऑफ कोर्स ये दोनों में फर्क है, आप जानते हो, मैं अभी उसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। बट एनालॉग में और डिजिटल में ट्रांसफॉर्म डोमेन जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, ट्रांसफॉर्म डोमेन रिप्रेजेंटेशन, तो क्या आता है? कंटिन्यूअस टाइम में लाप्लास ट्रांसफॉर्म आता है, एंड डिस्क्रीट टाइम में क्या आता है? जेड ट्रांसफॉर्म। Am I right or wrong? Mathematical representation of a continuous time system is none other than the differential equation. Mathematical representation of the discrete time system is none other than that of the difference equation. ये दोनों में क्या फर्क है? डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन चाहेंगे ट्रांसफॉर्म डोमेन में ले जा करके, तो क्या करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे और उसमें जेड ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। तो
जेड ट्रांसफॉर्म के साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड, बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? फिलोसॉफिकली बताइए। यहां पर होलिस्टिक पर्सपेक्टिव आता है, कॉन्सेप्ट की गहराई में चीजों को जाकर के, जैसे मैं बार बार बता रहा हूं, कनेक्ट द डॉट। ये हमारा काम सामने वाले के अंदर के कोर पर जाने में, और उससे मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। व्हाट आई कैन टॉक इज व्हाटएवर आई वॉक। तभी आपको एक चीज दिल से निकलेगी तो दिल को छूएगी। तो जीवन इससे जो रसमय बनता है ना, सफलता और निष्फलता के बाह्य पैरामीटर के भी ऊपर हम उठ जाते हैं। ये संभव है कि मैं अपना विश्वास का जो एक क्या कहेंगे, गुजराती में रणको बोलते हैं, ये आपको अगर टच कर जाए ना, तब सही में चीज जो करना चाहिए वो परिणाम दे रही है, ऐसा मैं कहूँगा। इंफॉर्मेशन सभी भूल जाए, पर सर ये फोटो निकालिए, सबको दे दीजिएगा, और मेहनत करता हूँ लिखने में। ठीक है, क्या समझ में आया? आई एम आस्किंग नाउ वन क्वेश्चन। जेड ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब उसमें डाइवर्जेंस पॉसिबल भी है। उससे क्या कहना चाहते हो? हमारे जीवन में भी हम दोनों तरह से काम करते हैं ना। कभी कभार हमारा काम एनालॉग मोड में होता है, हमारी काफी क्लोज फ्रेंडशिप है तो हम उनके साथ हेलो तू मैं करके बात करेंगे, है कि नहीं? आपकी सबसे एक डिप्लोमेटिक व्यवहार। तो ये एनालॉग रिलेशन है, ये डिजिटल रिलेशन है। तो उन दोनों में, एनालॉग और डिजिटल में, यहाँ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कुछ नहीं। यहाँ मुझे पूरा विवेक, मर्यादा, कैमरा का भी सरब रखनी पड़ेगी मुझे, है कि नहीं? तो ये डिजिटल डोमेन की बात है, तो वहां पर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आ रहा है, यहाँ पर देयर इज नो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। समझ में आ रही है बात? उसमें मैंने आंसर दे दिया, अभी जो एग्जांपल से मैंने स्पॉन्टेनियसली बताया उसी में उसका आंसर निहित है। तो हर एक कॉन्सेप्ट, व्हाट आई इंटेंड टू कन्वे, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिलोसॉफी। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। If you start interpreting in that, we can say, light of awareness, if you start interpreting it in that light of awareness, I am sure you will fall in love with whatever subject you are teaching. And it actually becomes a fuel for us to be the lighthouse for the humanity. Am I making some sense? तो अगली बार से ऐसा नहीं कहेगा ये नॉन टेक्निकल टॉपिक है, ये क्या है? बियॉन्ड टेक्निकलिटी है। एग्जैक्टली, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है ये, कि नहीं? दिस इज टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस। आईआईटी वाले बाबा क्या छोटे समझते हो आईआईटी के मास्टर से? उनका वाइडर स्पेक्ट्रम हो गया है। हाँ, बिल्कुल। उनको सही में सुनते हैं तो लगता है कि यार पूरा ट्रांस से ही बोलते हैं, है क्या नहीं? तो कंट्रोल सिस्टम्स के मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया, छोटे छोटे 1-2-3 बात लेकर के। Sensors technology. Now, what can be the extrapolation of sensor technology from that holistic perspective? जैसे अभी फिर से वो लेडर को रखिए नजर के सामने, what, how, why and who. Who में जाकर के आप सेंसर को देखोगे तो क्या है सेंसर? We are having this 5 sense organs, isn't it? What are that? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये पांचों को हम सेंस करते हैं, है कि नहीं? एक्चुएटर्स है, जैसे कंट्रोल सिस्टम में, ऐसे हमारे भी 5 एक्चुएटर है और वो 5 तत्वों से कनेक्टेड है। पूरा पंचीकरण, किसी को इंटरेस्ट है ना, कोई भी दर्शन के ये लाइट से, ये लाइट ऑफ अवेयरनेस से, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ साइंस, रिलीजियन and education is something which is really the need of an hour. I will tell up to that extent. समझ में आ रही है बात? मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा,
Secret Doctrine by H.P. Blavatsky, written in long back in 1875. Cosmogenesis, Anthropogenesis, इतने बड़े-बड़े 4 वॉल्यूम में वो बुक है, ऑनलाइन मिल जाएगी। आजकल गूगल देवता की बहुत मेहरबानी है सब पर, अगर प्यास है तो पानी उपलब्ध ही है भाई, है कि नहीं? तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, उसका टाइटल ही है सीक्रेट डॉक्ट्रिन सिंथेसिस ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलोसफी। समझ में आ रही बात? उसके प्रति सेंसिटाइज करना ही मेरे आज के टॉपिक का सेशन, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव फॉर कंट्रोल सिस्टम्स एंड सेंसर्स टेक्नोलॉजी। तो ये जो 5 सेंसर है अपने, है कि नहीं, उससे जो इनपुट डेटा आ रहा है, डेटा ट्रूथफुलनेस में फेथफुल वर्जन ऑफ द डेटा रिसीव्स टू अस and appropriate reciprocation to the same. Inner processing, input, process and output is a 3-step process. Input, process, output. Observe, filter, surrender. है कि नहीं? तो इन सब चीजों में एक सेशन में लिमिटेड इंस्ट्रक्शन में बहुत कुछ कवर नहीं किया जा सकता। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे, हर एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के पीछे, एज ए टीचर, एज ए कलीग, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए सबऑर्डिनेट, हमारे हर एक एक्शन के पीछे हमारे इंटेंट में क्लैरिटी बने, और वो क्लैरिटी क्या, किस संदर्भ में हो, हाईएस्ट के संदर्भ में, परफेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस के संदर्भ में हो, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, इंस्टिंक्टिव डोमेन का सब चीज बैलेंस में चलता रहे। निष्काम कर्मयोग, अच्छा ये सवाल मैं पूछ रहा था आगे, वो आखिरी पॉइंट बाद में हम आप में से मैं चाहता हूँ कि संवाद बने। अभी वैसे ये सेकंड लास्ट डे है ना, तो इस संदर्भ में थोड़ी सबसे कुछ ज्ञान की आदान प्रदान हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि नहीं? तो मैं क्या कह रहा था कि आउट ऑफ दिस 4 कौन सा डोमेन सबसे महत्वपूर्ण है केंद्र को छूने के लिए? केंद्र को छूने के लिए चलो इंस्टिंक्टिव का तो ऐसा समझ लो कि ये कैसा है भाई, इंस्टिंक्टिव एंड साइकोमोटर दोनों को कंबाइन ले लेते। चलो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ऐसी भाषा में बात करते हैं। नीचे के 2 किसके संदर्भ में है? कर्म के संदर्भ में। उसके भी 2 भाग है, जो इंस्टिंक्टिव है वो इनवॉलेंटरी कर्मा से, ऐसा समझो, एंड साइकोमोटर है वो वॉलेंटरी कर्मा है। जैसे हमारी है ना कुछ सिस्टम कैसी है, इनवॉलेंटरी, हार्ट का पंपिंग अपने आप चलता है कि नहीं? बट भोजन के लिए हाथ को हमको मुंह तक ले जाना पड़ता है, ये वॉलेंटरी है, वो इनवॉलेंटरी है। तो ये इंस्टिंक्टिव एंड साइकोमोटर ये दोनों कर्म के रिलेटेड है, बोथ आर कनेक्टेड टू कर्मा, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज कर्मयोग। परफेक्शन ऑफ दैट इज कर्मयोग, ऐसा ले लो। परफेक्शन ऑफ अफेक्टिव डोमेन इज भक्ति योग, एंड परफेक्शन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज ज्ञान योग, है कि नहीं? तो ये 3 में से स्टैंड अलोन मोड में किसमें परफेक्शन अटेंड हो सकता है, किसमें नहीं हो सकता, ये बताइए मुझे। चलो ये मेरा सवाल है। Am I making some sense in the question? Out of the 3 paths, path of knowledge, path of action and path of devotion, path of love, path of wisdom and path of, we can say, expression. So out of these 3, which one can lead to the completion, perfection? क्योंकि ये अगर क्लियर हो गया ना तो हम अननेसेसरी जो फंस जाते हैं ना वो अटक जाएंगे। हमारी मान्यता से बिल्कुल विपरीत रियलिटी है वो। That's why I wanted it to be sensitized with ourselves only. क्या लगता है आपको, बोलो? ये 3 में से कौन सा स्टैंड अलोन वे में हमको हाईएस्ट तक पहुंचा सकता है? तीनों पहुंचा सकते, तीनों सर, तीनों पहुंचा सकता है। ग्रेट, तीनों साथ में चाहिए होगा, तीनों साथ में चाहिए, तभी ये भी होगा। सही है। एक भी और कुछ आंसर? एक्शन पहुंचा सकता है, बाकी 2 नहीं पहुंचा सकते। ये तीनों पहुंचा सकते हैं। एक आंसर मिला, तीनों का कॉम्बिनेशन। एक आंसर मिला, तीनों पहुंचा सकते हैं। एक तरह से आंसर सभी सही है, फिर मैं बता रहा हूँ, बट ये तो घुमा फिरा करके कॉन्सेप्ट पहुंचाने के लिए कोई तो एग्जांपल देना पड़ेगा ना। तो जो पॉइंट मैं कन्वे करते जा रहा हूँ, जो बात बता करके, जो मैंने आंसर सोच के रखा है, वो बता करके मैं कोई एक पॉइंट की तरफ अपना ध्यान इंगित करवाना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी मान्यता क्या है, व्हाट इज अवर कॉमन बिलीफ सिस्टम, कि वी आर ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ कर्मा। सो परफेक्शन ऑफ कर्मा विल लीड टू परफेक्शन, isn't it? That is what is our common belief. Yes,
बट एक्चुअली आपने वो हारमोनियम देखा है ना, एक हाथ से हिलाते रहते हैं और दूसरे से सुर और ताल चलाते रहते हैं, है कि नहीं? तो ये जो सुर वाला काम है वो ज्ञान है, अरे सॉरी, सुर वाला काम है वो, कोई भी ले लो, ज्ञान भक्ति ये दोनों है, सुर और ताल। और वो पीछे वाला है वो बैकग्राउंड में चाहिए, मगर वो कर्म है, वो उसका कोई इतना वो नहीं है, थोड़ा क्या कहेंगे, क्रांतिकारी लगेगा, पर थोड़ा सोचिएगा, आपको जमे तो रखिएगा वरना फेंक दीजिएगा, डजंट मैटर। बट ये मैं कह रहा हूं बेस्ड ऑन सम ऑथेंटिक स्क्रिप्चरल बेस्ड बैकग्राउंड। आदि शंकराचार्य ने अपने प्रस्थान त्रयी में ये प्रतिपादित किया है कि कर्म योग का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि के साथ है। प्योरिटी ऑफ हार्ट इज ओनली फंक्शन ऑफ द कर्म योग। अभी भक्ति और ज्ञान में फिर झगड़ा आएगा। भक्ति के संप्रदाय के आचार्य क्या कहेंगे, भक्ति से ही पहुंच पाएंगे, और ज्ञान वाले शंकराचार्य कहते हैं कि ज्ञान से ही पहुंचोगे। उपनिषद में एक मंत्र भी है, ऋते ज्ञान है न मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति संभव नहीं। तो ज्ञान और भक्ति में झगड़ा नहीं करवाते, वैसा बोले एक ही सिक्के के वो दो बाजू। भक्ति की परिकाष्ठा पराकाष्ठा में ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान की पराकाष्ठा में सबके साथ सेंस ऑफ वननेस, जो हमने अफेक्टिव डोमेन, वो प्रकट हो जाता है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन कुंचिता मां हृदय कस्य स्वितम। ये भाव ज्ञान में भी या भक्ति से किसी भी आए, वो भाव महत्वपूर्ण है। चिन्मयानंद जी अपनी कमेंट्री में ऐबल्य उपनिषद की कमेंट्री में बताता है कि हृदय गुहा में वो है अंगुष्ठ मात्रम, हृदय गुहा में, तो हृदय का अर्थ उन्होंने कहा कि बुद्धि की सूक्ष्मता की पराकाष्ठा और भाव की विशालता की पराकाष्ठा का जो जंक्शन पॉइंट है वही हृदय गुहा है, ऐसा उन्होंने डेफिनेशन कहा। रशियन फिलोसोफर की बात करें तो गुरुजीफ इज टेलिंग अबाउट, ये पत्ता के कार्ड के माध्यम से ये समझाते हैं चारों डोमेन, काली फल्लई लाल और चरकट, ऐसे पत्ते से समझाते हैं, समझे? और हर एक का पर्सनालिटी टाइप फिक्स्ड है, ये भी मजेदार बात है कि नहीं? वो नहीं है बुक है ना, मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम, क्या है वो, वीनस। तो ये सबकी पर्सनालिटी टाइप कुछ प्री प्रोग्राम्ड है, और वो उसमें प्री प्रोग्राम से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर हमको पुनर्जन्म का सिद्धांत लाना पड़ेगा अगर होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को एस्टैब्लिश करना है। तो आगे से जो करके आए हैं वो पासा मजबूत है अपना, सीधी सरल बात है भाई, है कि नहीं? तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि एजुकेशन के जो 4 मेजर डोमेन है, ये डोमेन की पराकाष्ठा की प्रक्रिया में हम खुद लगे और वो संभावना के ऊपर अपने आप बीच दूसरे में काम हो पाए। मेरे पर मैं जो कर सकता हूं वो डिटर्मिनिस्टिक है। गंगा सती ने कहा है कि मेरू डगे जिना मंदरा ना डगे, भले ने भांगी पड़े ब्रह्मांड पे, बट औरों के लिए प्रोबेबिलिस्टिक है, वो संभावना पर ही काम करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? तो ये डोमेन की परफेक्शन का हमको काम करना है। व्हाट, हाउ, व्हाई एंड हु के ध्यान में रखना, वही वो 4 है। आप कोरिलेट करोगे तो वहां भी सेट हो जाएगा पूरा, ठीक है? और ये एक टॉपिक पे हमने सेंसर्स और कंट्रोल का एक छोटा एग्जांपल, वो जीरो पोल सिस्टम वाला भी है ना, वो भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट फिर टाइम आप लोगों के लिए शेयरिंग का नहीं रहेगा, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर रखता हूं। आखिरी 20 मिनट में मैं चाहता हूं कि पहले अपने पीयूष जैन साहब कुछ बात करें, बाद में सब लोग अपना अपना कुछ शेयरिंग करें, इंटरेक्ट करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है? आप लोगों ने मुझे इतना पेशेंसली सुना, और ये इंस्टीट्यूट के सब अथॉरिटीज ने मुझे इनवाइट किया यहाँ आने के लिए, इसलिए दिल से मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। शाह साहब आज अपने बीच में आए, और जो कि टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ, ये टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जो ये सब एक तरह से कह सकते हैं कि अपना जो एंशिएंट इंडिया जो था, उसमें जो फीलिंग्स थी, उसमें जो जिस तरह का एक सीक्रेटिव ज्ञान था, वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसका एक छोटा सा ग्लिम्स दिया है। इसका ये बहुत ही गूढ़ और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थीम है, जिसका स्टडी करना चाहिए कि टेक्निकल किस तरह से जुड़ा हुआ है इन सब चीज़ों से, कि जो अपने को बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। जैसे सर ने 4 डोमेन के फैक्टर कहे, तो ये सब चीज़ों का स्टडी के संग कैसा एक इंजीनियर के लिए एक सिंपलिज्म है। ये बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्स वाला सेशन था। थैंक यू वेरी मच।
थोड़ा सा जल्दी 4:15 बजे मीटिंग है, तो मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा सर। ठीक है सर, सेशन खत्म करने के बाद आप प्लीज़ आइएगा। थैंक यू सर। तो अभी कौन शेयर करेगा जी? यू कैन शेयर एनीथिंग, यस प्लीज। अभी जो सर ये आपने बताया कि हु, हाउ, वाई एंड व्हाट, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर सोच रहा था कि आपने जो आध्यात्मिकता वाली बात की कि हम जो भी ये इंजीनियरिंग का जो भी ये सेशन कुछ कर रहे हैं तो इसी के साथ रिलेटेड है कि हमें जो थियरी जो जहाँ से हमें पढ़ने की शुरू करनी है वो मतलब क्यों शुरू करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, क्यों मतलब कहाँ तक उसको ले जाना है, तो उसी पे सोच रहा था। मतलब आपने जो बोला कि ये पहला वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हु वाला है, तो मैंने उसके ऊपर एक सोचा कि मैं कौन हूँ, उससे ऊपर एक ये था कि मैं किसके लिए हूँ, टू हु एम आई। तो कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि पूरा अपने जो ज़िंदगी का मतलब जो भी जितने सारा साल हमारे कैरियर की लाइफ होती है वो ऐसी जगह ही बिगाड़ देते हैं जहाँ तक मतलब हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। बाद में पता चलता है कि ये लोग मेरे लाइफ के हिस्से थे ही नहीं। तो ये जो उसका जो पार्ट होता है कि मैं किसके लिए हूँ, अगर हम वो जल्दी जान ले तो उसी लिमिटेड लोग के साथ हम मतलब अच्छे से क्वालिटी मतलब जो भी कुछ है वो निकाल सकते हैं। जैसे अर्जुन और कर्ण दोनों थे तो दोनों के पास सामर्थ्य तो था ही, मतलब ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन से अच्छा कर्ण था, लेकिन फिर भी जो गाइडेंस उसे मिला श्री कृष्ण के माध्यम से तो उसकी वजह से वो अच्छे से मतलब उसका सामर्थ्य कहाँ लगाना चाहिए तो वो अच्छे से वो लगा पाए। और उसी की जैसे अभी वो धर्म वाला बताया कि धर्म विहीन, तो उसी के माध्यम से कर्ण को अपना वो मतलब जो ज्ञान था वो जब उसे चाहिए था वो मतलब वो लगा नहीं पाए थे। तो ये जो आपने चारों बताए वो उसको केंद्र में मतलब जो शक्ति आपने बताई जगत मतलब जो योगेश्वर जो मतलब बोलते हैं उसको भगवान, मतलब जिसकी वजह से हम एग्जिस्ट है उसको केंद्र में रख के ये सब चीज़ें हमें रखनी चाहिए। उसके अलावा ये सब चीज़ों का मतलब कोई मायने नहीं रहता मतलब। तो ये पूरा इसका जो कंक्लूजन मैंने निकाला तो वो इम्पोर्टेंट है। और किसी को कुछ? कितने लोग पीएचडी हो चुके नहीं हुए अभी तक, पीएचडी में एनरोल करना बाकी है अभी, ऐसे है कोई? तो आप में से किसी को भी रुचि है मेरे साथ काम करने में? अभी जो टेलर दिखा मुझे लगता है कि इसको मैं झेल सकता हूँ 2-3-4 साल। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ फैकल्टी हूँ, आप लोग एनरोल कर सकते हो, इच्छा है तो। नहीं सर, हम वी आर रेडी टू सेंड ऑनेस्टी के अप्रोच में भी कर सकते हैं। टाइटल बदला जाए अदर वी आर हैप्पी टू शेयर। और बोलो कुछ। चाय मंगवाओ जल्दी जल्दी, चाय के बगैर आवाज नहीं आ रहा है, सुस्ती आ गई है। रवीश चाय लाओ या कुछ और?